ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اتر پردیش میں گاؤں کشی کے الزام میں مسلمان کا قتل، جمہوریت کے منہ پر بدنما داغ، بیرسٹر اویسی کا اظہار افسوس۔ اسمبلی کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی، حکومت پر کسانوں کے مسئلے سے فرار ہونے اپوزیشن کا الزام۔ اپوزیشن کسانوں کی لاشوں پر سیاست کر رہی ہے، ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کا ریمارک۔ اردو کے لیے 1003 ودیا والنٹیئرز کا تقرر، تقررات میں شفافیت، نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری کا دعویٰ۔ بنجر ہلز میں 18 سالہ نوجوان ڈینگی مرض سے فوت، متوفی کے بھائی کی حالت بھی نازک۔ اور امان نگر میں 6 ماہ کی لڑکی کو سمپ میں پھینکنے والی خاتون گرفتار۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ددری میں پیش آئے واقعے کو جمہوریت پر بدنما داغ سے تعبیر کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ صرف شک کی بنیاد پر ایک شخص کی جان لینا انتہائی افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا قانون کی بالادستی رہے گی یا پھر ہجوم جو چاہے گا وہ اس ملک میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گائے کے گوشت کے استعمال کے نام پر قتل کیا گیا، جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرحوم محمد اخلاق کے گھر میں گائے کا گوشت ہی نہیں تھا۔ بیرسٹر اویسی نے ہجوم کی طرف سے محمد اخلاق کے افراد خاندان کو سدوکوب کیے جانے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ملک میں ملیشیا قائم ہو جائے گی اور قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مرکزی وزیر مہیش شرما کی طرف سے اس افسوسناک واقعے کو صرف ایک حادثہ قرار دیے جانے کے ریمارکس کی بھی مذمت کی۔ ممبئی ٹرین دھماکوں کے ملزمین کو سنائی گئی سزا پر تبصرہ کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ پولیس کی طرف سے 2 چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔ ایک میں رگھوونشی کی رپورٹ میں 12 افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جبکہ راکیش ماریان نے اپنی رپورٹ میں ساجد شیخ اور انڈین مجاہدین کو دھماکوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ان بم دھماکوں میں پولیس کی تحقیقات پر شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو ملزمین کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ہماری جمہوریت پر ایک بدنما داغ ہے کہ ایک شخص کو اس شک کی بنیاد پر اس کی جان لے لینا کہ اس کے پاس گائے کا گوشت تھا۔ ہماری ڈیموکریسی ہے جس میں رول آف لا رہے گا یا پھر جو موب چاہے گا وہ کرے گا؟ کیا کسی کے مان بھی لے جائے گا اگر وہ گائے کا گوشت تھا جو نہیں ہے، ثابت ہو چکا ہے؟ تو کیسے کسی کو اجازت دیں گے کسی کے گھر میں گھس کر کسی کے عورتوں کو ماریں، بچے کو مار دیں اور کسی کی جان لے لیں؟ اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا جو رانچی میں بھی ہوا ہے تو ہمارے ملک میں صرف ملیشیا ہو جائے گی، رول آف لا ختم ہو جائے گا اور موبوکریسی ہوگی، جس کے جو دل میں آئے گا کسی کا قتل کرے گا۔ یہ رول آف لا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ سماج وادی پارٹی کی جو حکومت وہاں پر ہے، جو انکمپیٹنٹ ہے، کمپلیٹ فیلئر ہے، وہ بجائے اور گرفتاری کرتے وہ گوشت کا ایگزامینیشن کرا رہے۔ ارے بھائی، ان کے دماغ کا کوئی علاج کرائے جا کر، کہ دماغ ان کا چیک کرائے کہ تم کیا گورننس وہاں پر کر رہے ہو۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جس شخص کو مارا گیا اس کا بیٹا ہندوستان کی ہماری ایئر فورس میں کام کرتا ہے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کرتا ہوں، اور ہمارے کلچرل منسٹر کو کلیئر کٹ ٹرمز میں اس واقعے کو، انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ مس انڈرسٹینڈنگ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے وہ انڈیا کے یونین کیبنٹ کے منسٹر ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ، یہ غلط ہے۔ ان کو آؤٹ رائٹ کنڈیم کرنا چاہیے اور سخت ایکشن کا ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔
जुमेरात को तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई सिर्फ 5 मिनट ही चलाई गई। अपोजिशन के शोरगुल की वजह से स्पीकर मधुसूदन चारी ने इजलास की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। सुबह जब इजलास शुरू हुआ तो बीजेपी के अरकान जीएचएमसी के मुअत्तलशुदा मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा करते हुए ऐवान में दाखिल हुए। इस दौरान तेलुगु देशम, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वाईएसआरसीपी ने किसानों के कर्ज एक ही वक्त में अदा करने का मुतालबा करते हुए प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाज किया। स्पीकर मधुसूदन चारी ने कहा कि 2 दिन इस मसले पर मुबाहस हो चुके हैं, अब मजीद मुबाहस की गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही अपोजिशन अरकान ऐवान के वस में पहुंच गए और शोरगुल शुरू कर दिया। वजीर इमारात और शवारे ने इस मौके पर जवाब दिया, लेकिन अपोजिशन के मौक़िफ़ को देखकर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। ऐवान की कार्रवाई पीर तक मुलतवी किए जाने पर अपोजिशन जमातों ने असम्बली के रूबरू सड़क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक में खलल पैदा किया। इस मौके पर अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी के अलावा तेलुगु देशम, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वाईएसआरसीपी के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। जाना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों का कर्ज माफ़ करने से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बात करने के बजाय फरार इख्तियार कर रही है। बाद में पुलिस ने एहतजाजी अरकान असम्बली को गिरफ्तार करते हुए नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने अपोजिशन के एहतजाज पर तबसरा करते हुए कहा कि अपोजिशन गैर ज़रूरी सियासत कर रही है, जबकि वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसानों के कर्ज एक ही वक्त में अदा करने के लिए हुकूमत संजीदा है। इसके बावजूद भी अपोजिशन का एहतजाज मुनासिब नहीं है। कानून के बारे में एक ही दम पूरा जो कर्जा है माफी करना बोल के डिमांड करते हुए पूरा सियासत पार्टी असेंबली में कल डिमांड करे तो सीएम साहब ने जो है जवाब नहीं देते हुए हाउस से चले जाना, ये तो किसान की बेइज्जत करे जैसा है। आज भी जो है फिर यही मुद्दा मसला उठाए तो सीएम हाउस को नहीं आना एक चीज है, फिर हाउस एकदम फिर एक दिन के वास्ते पूरा अर्जन करना, ये तो बहुत नाइंसाफ है। पॉलिटिक्स करने के वास्ते अपोजिशन पार्टीज बात कर रहे हैं, वो वन टाइम सेटलमेंट का भी इन प्रिंसिपल वी एग्री करे, थोड़ा फाइनेंशियल का पोजीशन देख लेके, वेस एंड मीन्स देख लेके वन टाइम सेटलमेंट करने का भी गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स करने का वास्ते ही बात कर रहे हैं, बस उसने में वो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जो फार्मर्स के ऊपर, हम नहीं बोल के नहीं असेंबली चलने का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, असेंबली को डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। इस वास्ते स्पीकर साहब ने अर्जुन कर दिया। गिरफ्तारी के बाद अपोजिशन कायदीन ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में भी धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन कायदीन जाना रेड्डी, जीवन रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और के लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत एक ही वक्त में किसानों के कर्जात की माफ़ी को नज़रअंदाज कर रही है। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने दरमियान में भी मुबाहस को ख़त्म कर दिया। उनका कहना था कि अवाम ही इसका जवाब देंगे। बीजेपी के लक्ष्मण ने कहा कि किसानों के लिए हम बात कर रहे हैं तो हुकूमत हम पर हमले कर रही है, लेकिन हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तेलुगु देशम के एल रमना ने कहा कि हुकूमत रास्त जवाब देने के बजाय फरार अख्तियार कर चुकी है। सीपीआई के रविंदर कुमार ने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा नहीं है। इस दौरान तेलुगु देशम के रुकन असम्बली और बीसी कायद आर कृष्णया ने कहा कि हुकूमत जमहूरी अंदाज में किए जाने वाले एहतजाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी तबके के लिए फीस बाज अदायगी की रकम की इजराई के मुतालबे पर किए गए एहतजाज के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि जमहूरी हक पर पाबंदी लगाना हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जल्द से जल्द फीस बाज अदायगी की रकम जारी करे ताकि तलबा को राहत मिल सके। तेलंगाना हुकूमत के चीफ विप के ईश्वर ने कहा कि अपोजिशन जमातों को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने के मकसद से ड्रामे कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल पर संजीदा है, इसीलिए 2 दिन ऐवान में मुबाहस करवाए गए। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतें अगर किसानों को नज़रअंदाज नहीं करती तो आज ये मसाइल पैदा नहीं होते। इस मौके पर रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत किसानों के साथ है, किसान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें।
सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि ऐवान असम्बली में मुबाहिस के बाद भी हुकूमत किसानों को भरोसा दिलाने में नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत एक वक्त में किसानों के कर्ज माफ़ी से फरार इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असम्बली में हुकूमत ने अपोजिशन का गला घोंट दिया। उनका कहना था कि मरकज़ ने बरखी प्रोजेक्ट्स के लिए 16,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बावजूद भी मरकज़ को किसानों के कर्ज मामले पर बदनाम करना मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि अपोजिशन लाशों पर सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों में एतमाद बहाल करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन चिल्लर सियासत के जरिए किसानों को मायूस कर रही है। KTR ने बताया कि 2 दिन में जुमला 11 घंटे 56 मिनट मुबाहिस हुए, जिसमें अपोजिशन जमातों ने 6 घंटे 23 मिनट बात की और हुकूमत की तरफ से सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट बात की गई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR ने भी 1 घंटा 40 मिनट बात करते हुए वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आला चाहते तो साबिक़ा हुकूमतों का कच्चा चिट्ठा खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ संजीदगी के साथ किसानों के लिए किए जा रहे इक़दामात का ही जिक्र किया। बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए KTR ने कहा कि गली में वावेला मचाने के बजाय दिल्ली से तेलंगाना के लिए इमदाद हासिल करने पर तवज्जो दी जाए। पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, TDP हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, इसके ये लोग जो भी कहेंगे, जो भी वो कहना चाहेंगे, हमने पूरा उनको मौका दिया। वो लोग 6 घंटे से ज़्यादा वो बात करें, हम बस 2 घंटे से कम हम लोग बात करें, ट्रेजरी बेंचेस होते हुए भी। तो बात बहुत साफ है सब। वो लोग चर्चा नहीं चाहते, वो लोग यही चाहते हैं कि यहाँ गैर जिम्मेदारी जो कार्रवाई वो लोग ने किया, उससे बहुत साफ जाहिर है बात कि वो लोग यही चाहते हैं कि किसी भी हाल में बदनाम करना है TRS पार्टी को। यही चाहते हो कि असेंबली ना चले और रोड पे जाके धरना करो, हड़ताल करो, तो आपकी वो ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो कोई भी कुछ भी करे, हमें कोई इतराज नहीं उससे। साहब इसमें कोई छोटा बच्चा था क्या? इसमें मनाना या ना मनाना कोई बात ही नहीं है साहब। आप जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो स्टेट की किसान हैं उनके लिए, हमने पूरी तरह से बताया कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या, शॉर्ट टर्म क्या, मीडियम टर्म क्या। ये सब सुनने के बाद भी अगर आप इसी पे एक ही एजेंडा लेके चलते हो कि किसी भी हाल में बदनामी करना है, तो क्या करें उसके लिए। नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि विद्या वॉलंटियर्स के तकर्रुरात शफाफ अंदाज में किए गए हैं। अगर किसी को इस सिलसिले में एतराज़ है तो वो स्कूल एजुकेशन से रुजू हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने बताया कि 7,759 विद्या वॉलंटियर्स की निशानदही की गई। इसमें 7,491 का तकर्रुर किया गया। अब तक 6,488 विद्या वॉलंटियर्स खिदमात पर रुजू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मजीद 1,271 वॉलंटियर्स का रुजू होना बाकी है। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर तक तकर्रुर शुदा वॉलंटियर्स रुजू हो सकते हैं। के श्रीहरि ने कहा कि उर्दू के लिए 1,003 विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुर किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट पर 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में गैर मामूली धांधलियां की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के टेंडर्स देने के लिए हर कंपनी से 15,000 करोड़ रुपए कमीशन लिया गया और इस टेंडर से मुतल्लिक अवाम को किसी किस्म की मालूमात भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इस तरह के कामों के लिए रकम मौजूद है, लेकिन किसानों को कर्ज अदा करने के लिए रकम नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मसले को ऐवान असम्बली में उठाया जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए KCR खानदान तेलंगाना अवाम को गिरवी रखने का मंसूबा रखता है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के इलाकों पारदीवाड़ा और फरत नगर का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मुकामी अफराद ने उन्हें स्वेज लाइन और CC रोड के मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी के अरकान असम्बली ने गन पार्क पर सफाई अमले का ड्रेस पहनकर मअतल शुदा जारूब कश मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा करते हुए झाड़ू लगाई।
इस मौके पर लक्ष्मण ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हड़ताल के दौरान जिन मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया था उन्हें फौरी बहाल किया जाए। हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों में सरबराही आब से मुताल्लिक़ मसाइल और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में MD वाटर वर्क्स जनार्दन रेड्डी के साथ रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी और साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर्स का एक इजलास मुनक़िद हुआ। बाल सर्टिफिकेट में जो पानी की टांकी की तामीर का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था, उसके काम जल्द शुरू करवाने का इजलास में मुतालबा किया गया। चारमीनार हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सरबराही आब को मौसर बनाने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। तमाम बल्दिया डिवीज़नों में जहां पानी की और सीवरेज की शिकायत है, उन शिकायतों को दूर करने के लिए आज MD वाटर वर्क्स के पास मीटिंग रखी गई थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर तमाम कॉरपोरेटर्स मीर जुल्फ़िकार अली साहब, जनाब मोहम्मद गौस साहब, जनाब मुकरम अली साहब, जनाब राजमोहन साहब, जनाब मोहसिन बलाला साहब, तमाम कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। हर एक अपने अपने एरिया के मसाइल को पेश किया। खुसूसन सबसे पहला मसला बाल सर्टिफिकेट के रिजर्वर का है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना 24 घंटे के अंदर ऐलान भी किए, जियो भी जारी कर दिए, लेकिन महकमे की तरफ से अब तक उसका टेंडर कॉल नहीं हुआ। MD वाटर वर्क्स जो नए हैं, उन्होंने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर टेंडर कॉल करेंगे और हमारा मुतालबा ये है दिसंबर से काम का आगाज़ होना चाहिए। इसी साल में जो मंजूरी हुई, इसी साल में जो जियो जारी हुआ, इसी साल में काम का भी आगाज़ हो जाना चाहिए। मजलिस के रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने बैरून मुल्क तालीम के लिए गए तलबा की स्कॉलरशिप्स की पहली किस्त जारी करने का मुतालबा किया है। कौंसल में अल्ताफ हैदर रज़वी ने कहा कि ऐसे तलबा जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले ले चुके हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसलिए पहली किस्त की अदायगी ज़रूरी है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत इस मसले को हल कर लेगी। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने सालार पकवान गैस स्कीम के तहत इब्राहिम बाग के इलाके में गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। इस स्कीम से 38 खानदानों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर रहमत बेग मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने सवाल किया है कि लोकेश की तरफ से असासों के ऐलान के चैलेंज को टीआरएस क्यों कबूल नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने रुकन पार्लियामेंट कविता की तरफ से तेलुगु देशम को चोर पार्टी करार दिए जाने के रिमार्क को मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु देशम चोर पार्टी है तो टीआरएस में शामिल हुए कई अरकान जो कि तेलुगु देशम से आए थे, क्या वो भी चोर हैं। RTA LB नगर की जानिब से outer रिंग रोड के पास तलाशी मुहिम शुरू की गई। RTA के अहदेदारों ने आंध्रा की 7 बसों को दरकार दस्तावेजात न होने पर चालानात किए। महकमा इनकम टैक्स के मुलाजमीन ने मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए खिदमात का बाइकआउट किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि IRS तकर्रुरात क़वायद के तहत महकमे में नई 50% असिस्टेंट कमिश्नर की जायदादों पर मौजूदा स्टाफ को तरक्की देकर पुर किया जाना चाहिए, जबकि 50% जायदादें राज तकर्रुरात के जरिए पुर होनी चाहिए। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि CBDT तरक्की के कोटे को महदूद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में महकमे के मुख्तलिफ शोबजात में 3000 से जायदादें मखलूआ हैं, लेकिन हर तकर्रुरात के ऊपर मौसर तौर पर अमल नहीं किया जा रहा है। बंजारा हिल्स के श्री राम नगर में बिना इजाज़त और गैर कानूनी तरीके से सेल टावर की तनसीब अवामी एहतजाज के बाद रोक दी गई। बताया गया कि सेल फोन खिदमात की मशहूर कंपनी की तरफ से टावर नस्ब किया जा रहा था, जिस पर मुकामी अवाम ने एतराज़ किया और फौरी बलदी हुकाम को इत्तला दी। अहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुँच कर टावर के सामान को जब्त कर लिया। LB नगर पुलिस ने बढ़ते हुए रहजनी की वारदातों के इंसदाद के लिए तलाशी मुहिम शुरू की है। इस मौके पर पुलिस ने LB नगर, दिलसुख नगर और चेतनापुरी के इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ली।
बंजारा हिल्स के भोलानगर में एक 18 साल नौजवान डेंगू मर्ज से फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सलीम की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक सलीम और उनका भाई नसीर गुज़िश्ता 15 दिनों से फीवर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। चारशंबे की रात सलीम की मौत वाक़ हो गई, जबकि उनके भाई नसीर की हालत नाजुक बताई गई है। दोनों डेंगू से मुतासिर हुए थे। तालाबकट्टा भवानी नगर में एक 6 माह की शीरख्वार लड़की को संप में फेंककर कत्ल करने वाली शैतान सिफत खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्माइल नामी शख्स की लड़की खतीजतुल कुबरा को उसकी चाची हलीमा ने संप में डाल दिया था, जिसकी वजह से मासूम की मौत हो गई थी। सौजोन डीसीपी वी सत्यनारायण के मुताबिक घर वालों को लड़की की लाश संप से चारशंबे की रात बरामद हुई। पुलिस को शुबा है कि 6 माह की लड़की जो चल भी नहीं सकती थी, वो एक ऐसे संप में कैसे गिर सकती है जिसकी दीवार भी ऊंची थी। जब पुलिस ने इस मामले की जामे तहकीकात की तो मालूम हुआ कि लड़की की मां अरशिया बेगम और उसकी देवरानी हलीमा बेगम में रस्साकशी थी। दोनों घरेलू कामकाज के मसले पर झगड़ा किया करते थे। जेठानी से बदला लेने के मकसद से हलीमा बेगम ने मासूम बच्ची को संप में फेंक कर उसका कत्ल कर दिया। इस वाक़े पर पूरे इलाके में अवाम ने अफसोस का इजहार किया है। इस्माइल को सिर्फ एक ही लड़की थी, जिसकी मौत से पूरा खानदान सकते में आ गया है। ये तलब करता लो एक मासूम बच्ची 6 महीने का मासूम बच्ची खतीजा कुबरा, ये रहने के भी नहीं आता, लेकिन ये वाटर सम्प में मर चुकी थी। कैसा है वो केस रख दिया। हमारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लोग थोड़ा ये मेन इशू को छुपाने के लिए कोशिश कर दिया। वो अचानक एक्सीडेंटली ये मदर हलीमा बेगम से नीचे गिर गया था, ऐसा बोल दिया। लेकिन हमारा इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर, एसीपी में सेल्फ थोड़ा जाके वहाँ पूरा एग्जामिन करने के बाद ये पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मालूम हुआ था ये बिल्कुल 100% मर्डर है। गोलकुंडे के इलाके में पेश आए हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर एक रेती की लारी ने पैदल जाने वाले 2 अफराद को टक्कर दे दी। शमशाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने एक शख्स को जिंदा जलाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी बालानगर के मुताबिक आनंद नामी 22 साल नौजवान ने अपने दोस्त राकेश की बहन की शादी के लिए कर्ज से इनकार किया था। इसकी वजह से दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। राकेश ने अपने दोस्त शेख बाबर जानी के हमरा आनंद के साथ मारपीट की, फिर बाद में आनंद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसकी वजह से वो शदीद झुलस गया। आनंद गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में गांवकुशी के इल्जाम में मुसलमान का कत्ल, जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग, बैरिस्टर उवैसी का इजहार अफसोस। असेंबली की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी, हुकूमत पर किसानों के मसाइल से फरार होने का अपोजिशन ने लगाया इल्जाम। अपोजिशन किसानों की लाशों पर सियासत कर रही है, रियासती वजीर केटी रामाराव का रिमार्क। उर्दू के लिए 1003 विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुरात में शफाफियत, नायब वज़ीर आला के श्रीहरि का दावा। बंजारा हिल्स में 18 साल नौजवान डेंगू मर्ज से फौत, मुतवफ़्फ़ी के भाई की हालत भी नाजुक। और अमान नगर में 6 माह की लड़की को संप में फेंकने वाली खातून गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।